کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ پاکستانیوں میں بھارتی جارحیت کے خلاف شدید غم و غصہ، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور ملتان سمیت پنجاب بھر میں بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے جنگ مسلط کی گئی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اٹک کے علاقے حسن ابدال میں پولیس کی کارروائی، ڈاکوؤں کا گروہ گرفتار، ڈاکوؤں سے اسلحہ اور لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ منڈی بہاؤالدین میں محرم الحرام کے حوالے سے پولیس دستوں کا فلیگ مارچ، ڈی پی عمر سلامت کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ وہاڑی میں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا پولیس کے خلاف احتجاج، ملتان روڈ بلاک کر دی۔ ڈرائیورز نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس ٹینکرز کے ڈرائیورز پر تشدد کرتی ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں غربت کے مارے والدین اپنے 3 سالہ لخت جگر کی زندگی کے دن گننے پر مجبور۔ ڈاکٹرز نے دل کے عارضے میں مبتلا بچے کے علاج کے لیے 3 لاکھ روپے مانگ لیے۔ غریب والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل کی ہے۔ کنکوٹ میں عوام بھارتی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، مودی اور بھارت کے خلاف نعرے بازی، بھارتی وزیر اعظم کا پتلا بھی جلایا گیا۔ حسن ابدال میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا گروہ گرفتار کر کے اسلحہ اور لوٹی ہوئی رقم برآمد کر لی۔ اٹک کے علاقے حسن ابدال میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا گروہ گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکوؤں نے اسلام آباد، لاہور اور ملک کے دیگر اضلاع میں 88 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان نے جسٹس ناصر الملک کی ہمشیرہ، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اور ڈاکٹرز کے گھروں میں بھی ڈکیتیاں کی۔ ملزمان نے اسلام آباد پولیس کے 2 جوانوں سمیت 3 افراد کو قتل بھی کیا تھا۔ ملزمان سے پولیس نے چھینا گیا سرکاری اسلحہ، گولیاں اور لوٹی گئی رقم بھی برآمد کر لی ہے۔ منڈی شاہجیونہ میں پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے متعدد مشکوک افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ منڈی شاہجیونہ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ڈی پی او جنگ کی ہدایت پر پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ آپریشن کے دوران 7 رائفلیں، 30 پستول اور بڑی تعداد میں گولیاں بھی برآمد کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حساس ضلع ہونے کے باعث جگہ جگہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آج سرچ آپریشن کیا گیا مختلف علاقوں میں تھانہ مرسن کے، اور یہاں سے 1 7 mm رائفل، امنیشن اور 1 پسٹل ٹی بور برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس افسران نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ محرم الحرام میں مشکوک افراد پر نظر رکھیں تاکہ شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم خاتمے میں لائے جا سکیں۔ گجرانوالہ میں خواجہ سراؤں نے بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی، مودی کا پتلا بھی جلایا اور پاک فوج کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گجرانوالہ کے سیالکوٹی دروازے سے خواجہ سراؤں نے بھارتی جارحیت اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی، جو گوندلانوالہ اڈا پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک خواجہ سراؤں نے ہاتھوں میں بینرز اور قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج بھارت کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیار دشمن چھپ کر وار کرنے کی بجائے ہمت کا مظاہرہ کرے۔ پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہے۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو ریلی نکالنے کا، جو بھارت نے بارڈر لائن پہ فائرنگ کی ہے اور ہمارے 2 جوان شہید کیے، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہماری پاک فوج تو ہے ہی، لیکن جو ہم ہیں ہم سے پہلے بات کریں اور بعد میں پاک فوج کو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی سرکار پاکستانی خواجہ سراؤں کا مقابلہ کرنے کی شکت نہیں رکھتی، پاک فوج کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس موقع پر خواجہ سراؤں نے کشمیر سیکٹر پر بھارتی جارحیت کے دوران شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ تاہم مظاہرین اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔
मुल्क भर की तरह मुल्तान के शहरियों में भी भारतीय जारियत के खिलाफ गम और गुस्सा पाया जाता है। सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। कश्मीर में भारतीय जारहियत और कंट्रोल लाइन पर हालिया भारतीय कशीदगी के खिलाफ मुल्तान के शहरियों में भी गम और गुस्सा पाया जाता है। सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर भारत की जानिब से जंग मुसल्लत की गई तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कश्मीर हमारा है और इंशाअल्लाह ये इंडिया भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा और इनको सफाई हस्ती से मिटा के रख देंगे। इंडिया क्या, इंडिया जैसी 10 रियासत से इकट्ठी हो जाएं, वो हमारे मुल्क का कुछ नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि इंडिया के इतने टुकड़े होंगे कि इंडिया सारी जिंदगी इस बात को पछताएगा। कश्मीर क्या, कश्मीर तो है ही हमारा, इंडिया भी हमारा होगा इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद। इस मौके पर फिजा पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरे में हर उम्र के अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग गुजरात की जानिब से भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली GTS चौक से शुरू हुई जो अंदरूनी शहर और मुख्तलिफ चौकों से होती हुई कचहरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत यूथ विंग के सदर खालिद सियाल, जनरल सेक्रेटरी और सिटी सदर ने की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे। नौजवान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। एहतजाजी रैली के शुरका ने भारतीय परचम और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पोस्टर्स भी नजर आतिश किए। शुरका का कहना था कि दुश्मन मुल्क की तरफ से मैली आंख से भी नहीं देख सकता। उनका कहना था कि अगर इंडिया ने जंग मुसल्लत की तो उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। सियालकोट में पाकिस्तान जिंदाबाद सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका ने भारतीय जारियत की पुरजोर मजम्मत की। स्कूल के बच्चों ने पाक फौज की हिमायत में रैली भी निकाली। सियालकोट के गवर्नमेंट स्कूल में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में भारत की जानिब से फायरिंग से शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सेमिनार में भारतीय जारियत और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सेमिनार के बाद तलबा ने भारत के खिलाफ और पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि भारत अगर समझता है कि वो पाकिस्तान को मिटा देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने वतन का दिफा करना जानता है। 1965 में ठीक है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नाकों चने चबवाए थे, इस तरह 2016 में भी हमारे पास वही एटमी ताकत है। हम उन्हें दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा देंगे। हर बच्चा जज्बे से सरशार है और पाक फौज के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला ऐसे जज्बा रहेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कभी आंच नहीं आ सकती। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर शख्स, मर्द, औरत, बूढ़े, हर शख्स एक सिपाही है। वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे दर्ज के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुरेवाला के नवाही इलाका सब्जी मंडी के करीब मर्जीपुरा, अख्तर टाउन और फरीद टाउन में वाक़े महकमा इरिगेशन के अरबों रुपए मालियत की अराजी को महकमा माल का करप्ट अमला जाली दस्तावेजात तैयार करके फरोख्त कर रहा था। सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ बुरेवाला के रिहायशी की दरख्वास्त पर मुल्तान के बाद लाहौर रीजन में भी महकमा माल के अमले पर करप्शन साबित होने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और अराजी पर कब्जा करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DDI एंटी करप्शन खानेवाल को मुकदमे की तफ्तीश के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक एक्सीएन इरिगेशन पाकपतन, SDO इरिगेशन और TMO बुरेवाला भी शामिल तफ्तीश हैं। राजनपुर में कपास की चुनाई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन फसल पर सफेद मक्खी के हमले के बाद पैदावार में कमी का खदशा पैदा हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मुजाहिद दरेशक से। जी मुजाहिद।
राजनपुर में जो है कपास की चुनाई का अमल शुरू हो चुका है। हर तरफ खेतों में जो है वो खवातीन कपास चुनती नजर आती हैं और उनके लिए गर्मी भी एक मसला कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 40 से 42 के दरमियान होता है, जिसकी वजह से कपास चुनने वाले मजदूरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और यहाँ कपास की अगर हालत फसल की देखी जाए तो सफ़ेद मक्खी ने और दीगर सकिंग पेस्ट जो है उसने कपास को तबाह किया हुआ है और कपास सूख रही है, उसका वजन भी बहुत ज़्यादा कम है। इस वक्त हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और उनकी फसल की हालत इस वक्त कैसी है। सारी फसल खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत ही फसल है जी हुण चुनदे पियूं गर्मी की वजह कनू बहु गर्मी जोर है और सफेद मक्खी बहुत जोर है जी। जैसा कि आपने इनकी ज़बानी सुना कि इनको जो है वो ज़रिया अद्वियात वो कहते हैं कि 2 नंबर मिली हैं, जिसकी वजह से जितनी भी हमने कपास पे स्प्रे की है तो सिर्फ सफ़ेद मक्खी जो एक छोटी सी सकिंग पेस्ट है वो भी नहीं मर रही, और शायद वो कहते हैं कि हमारा इससे खर्चा ही निकल आए, आमदनी की तो कोई उम्मीद नहीं है जी। बहुत शुक्रिया मुजाहिद। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में SDPO सफदराबाद सैयद गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी की सदारत में अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमाए कराम, सियासी रहनुमाओं और अंजुमन ताजरा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। SDOP ने कहा है कि अमन कमेटी अशरे मुहर्रम उल हराम में अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए सारा दिन जुलूस के साथ मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि रूट्स और वक्त की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और मजहबी मुनाफरत फैलाने की सूरत में इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडी बहाउद्दीन में गुर्बत के मारे वालिदैन अपने 3 साला लख्ते जिगर की जिंदगी के दिन गिनने पर मजबूर हैं। डॉक्टर्स ने दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चे के इलाज के लिए 3 लाख रुपए मांग लिए। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल के मोहल्ला राजगान में मोहम्मद असलम का 3 साला बच्चा पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जा में मुब्तला है। मेहनत कश गुर्बत के बायस अपने लख्ते जिगर का इलाज करवाने से कासर है। मुसीबत के मारे वालिदैन का कहना है कि डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं। कसम पुरसी के बायस इलाज करवाना मुमकिन नहीं। आकाश की जिंदगी के दिन गिनने पर मजबूर है। बच्चा मेरा बीमार है तो मैं किसी जिम्मेदार को इतने कम करदा जी, मजदूर आदमी हाँ तो इतने वसायल नहीं जी भाई मैं इलाज करा लवा जी। 3 लाख रुपया साढ़े को मंगया तो साढ़े को इतनी गुंजाइश नहीं, गरीब हाँ सी, बहुत गरीब हाँ। छोटे छोटे बच्चे नो पूरे पंजाब अगे पूरे पाकिस्तान अगे साड़ी अर्ज है कि साढ़े बच्चे का सरकारी इलाज हो जाए। बेबस वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुखय्यर हज़रात से बच्चे के इलाज के लिए मदद की अपील की है। आरिफ वाला और गिरदोनवाह में करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस नाकारा हो गए। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। आरिफ वाला में चंद साल कबल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ देहात में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, जो नाकिस मशीनरी के बायस आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो गए, जिसके बायस दर्जनों देहात के मकीन मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि TMA ऑफिस में मुतादिद बार तहरीरी दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर आला अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया को लाखों रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं, इसके बावजूद अवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। अवाम ने मुतालिबा किया है कि पीने के साफ पानी की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वेलकम बैक। कनकोट में अवाम भारतीय जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मोदी और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भारतीय वजीर आज़म का पुतला भी जलाया गया। कनकोट के अवाम ने वतन अजीज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली, जिसमें भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मोदी का पुतला जलाया गया। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारतीय वजीर आज़म के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। शुरका का कहना था कि वो पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। अगर भारत ने गलती से भी पाकिस्तान की तरफ देखा तो वो पाक अफवाज के शाना बशाना सरहदों पर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लाड़काना में मकतूल अब्दुल मजीद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा सरापा एहतजाज बन गए। हमारे नौजवान को बेगुनाह कत्ल किया गया। मुजाहिरीन ने इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है।
लाड़काना के करीब बाखरानी थाना की हद में 9 रोज कबल कत्ल होने वाले मकतूल अब्दुल हमीद चांडियो के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। वर्षा ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। वर्षा का कहना था कि मकतूल अब्दुल हमीद चांडियो बाखरानी थाना की हद से गुजर रहा था कि 9 मुसल्लह अफराद ने स्याहकारी के नाम पर नौजवान को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनका कहना था कि उनके नौजवान को बेगुनाह कत्ल किया गया, मगर पुलिस की जानब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। 9 लोग थे जिन्होंने उसको कत्ल किया और फुर के दौरान कत्ल किया मजम्मत पे। अभी उनको किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक एक कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस का ये दावा गलत है। ताहाल कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ। उन्होंने DIG लाड़काना से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उधर मीरपुर खास में 5 बच्चों की हलाकत के बाद जिले भर की फिजा सोगवार है। बच्चों की अमवात की रिपोर्ट ताहाल सामने नहीं आ सकी और पुलिस के मुताबिक बैतुल माल के अमले को हिरासत में ले लिया गया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद वाहिद से। मोहम्मद वाहिद, क्या तफसीलात हैं? मीरपुर खास के इलाके जैगर टाउन में वाक़या बैतुल माल स्वीट होम के कमरे में लगने वाली आग के नतीजे में 5 बच्चे जाँ बाग हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बैतुल माल के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मोहम्मद आमिर खान, मासी जन्नत बीबी और सिक्योरिटी गार्ड को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर रखी है। दूसरी जानिब स्वीट होम के अफसोसनाक वाक़े पर मीरपुर खास के अवाम अफसोस जताए। सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ सियासी तंजीमों, नुमाइंदगान, वकला बिरादरी ने यहाँ का दौरा भी किया। जलने वाले के कमरे की हालत जार देखी और उस वकला का कहना था कि देखने से ऐसा लगता है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, क्योंकि पूरा कमरे की वायरिंग देखने में बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। स्वीट होम की मासी जन्नत के मुताबिक उसने मच्छर मार कॉइल जलाई थी। हलाक होने वाले बच्चों की शनाख्त जी मोहम्मद वाहिद, तफसीलात के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब खान वस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं, पाकिस्तान को दुनिया में अकेला समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। खैरपुर के नवाही इलाके कुंभ में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए नवाब वस्तान का कहना था कि नरेंद्र मोदी कश्मीर के मामले पर तन्हा, जबकि पूरी दुनिया कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो इसके नताइज भारत के लिए इंतहाई भयानक होंगे। उनका कहना था कि कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादियत के लिए जिदोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह एक दिन वो जरूर कामयाब होंगे। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों पर किए जाने वाले मजालिम का इंसानी हुकूक के आलमी इदारों और सलामती काउंसिल को नोटिस लेना चाहिए। सिंध के मशहूर सूफी फनकार फकीर सैयद मोहतन शाह फालिज और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होने के बायस गंबट अस्पताल में दाखिल हो गए, मगर गुर्बत के सबब सही इलाज नहीं हो सकता। सूफी फनकार ने सरकारी खर्च पर इलाज कराने की अपील की है। सिंध के सूफी फनकार सैयद मोहतन शाह ने साल 1947 में अपने फन का आगाज किया। उनकी गायकी दुनिया भर में शोहरत की हामिल है। सैयद मोहतन शाह ने आबिदा परवीन, अल्लन फकीर और वहीद अली समेत आलमी शोहरत रखने वाले फनकारों के साथ मिलकर अपने फन का मुजाहरा किया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें बेहतर गुलकार का सर्टिफिकेट भी दिया। सैयद मोहतन शाह इन दिनों फालिज, शुगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होने के बायस गंबट अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनका कहना था कि अब भी वो जिंदा दिली से सूफी कलाम गाने को तैयार हैं, लेकिन सेहत साथ नहीं दे रही। सैयद मोहतन शाह का कहना था कि हुकूमत ने सूफी फनकारों को भुला दिया है, मगर उन्हें अफसोस नहीं, उनके अहले खान का सामना है। यंग डॉक्टर्स ने कोयटा समेत सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में आज से OPDs बंद कर दिए। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि 4 माह तक एहतजाज के बाद हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम किए। वजीर आला के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बावजूद हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए। उनका कहना था कि 1 हफ्ते तक मुकम्मल OPDs का बायकॉट जारी रखेंगे। मुतालिबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से आए मरीज डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत डॉक्टर से मुज़ाकरात करके मसले को हल करे। दकई में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों और मनशियात फरोशी के खिलाफ ताजिर हजरात सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर्स ने सिविल सोसाइटी के हमरा पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया।
गुज़िश्ता रोज़ ऑल पार्टीज अंजुमन ताजरा और सहाफ़ियों के एक वफ़द ने DIG यूब डिवीज़न राय बाबर सईद से मुलाकात की थी और उनको दकई में मनशियात की खुलेआम खरीदो फरोख्त और दीगर मसाइल से आगाह किया, जिस पर पुलिस अफसरान ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुतालिबात तस्लीम न होने पर आज ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सरापा एहतजाज ताजिरों ने धमकी दी है कि अगर नोटिस ना लिया गया तो एहतजाजी धरना देंगे। डेरा मुराद जमाली में मुहर्रम उल हराम की हसासियत और फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से DIG शर्जील खरल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। डेरा मुराद जमाली में DIG पुलिस के ऑफिस में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डिवीजन भर के SSP समेत दीगर अहम अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी गई और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इमाम बारगाहों, जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। DIG शर्जील खरल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के तमाम तर प्रोग्रामों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी और इस मकसद के लिए रेंज भर में 29 मुख्तलिफ मकामात पर 102 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। उनका कहना था कि मुहर्रम उल हराम की हसासियत के पेश नज़र तमाम अज़ला में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वाले उलमा को किसी भी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने तमाम SSP को खुसूसी हिदायत की कि जुलूसों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का अज़ खुद मुआयना करें और जुलूसों के दरमियान अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। इस वक्त आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Pending issues including Kashmir and water. What I'm saying is that today you have to win different wars. Economic wars, you have to excel in industry, agriculture, in commerce, trade, and that will only happen if we have a technological revolution in Pakistan. It's never too late. I believe in this. I mean, we have wasted a lot of time, but then let's not cry over spilled milk. That's gone. So we should put our act together and move forward with a sense of commitment and achieving results. And I can guarantee you, my dear students and my very respected teachers, this is difficult but not impossible. We will do it inshallah one day soon. I think आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान और मजहबी हम-आहंगी बरकरार रखने के लिए सोबतपुर DC ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने की, जिसमें जिला भर से सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान और मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। इस महीने अमन का क़याम हम सब पर फर्ज है, इसलिए हमें चाहिए कि शरपसंदों पर कड़ी नजर रखें और उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दें। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम के जुलूस और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा भाईचारे की फिजा कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। डेरा बुगटी में पहला ऑल डिस्ट्रिक्ट शहीद फजल खान क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। शमशीर क्रिकेट क्लब डेरा बुगटी में टाइगर क्रिकेट क्लब सुई को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। फाइनल मैच में दोनों टीमों की शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। शहरियों के अलावा कबायली उमायदीन की भी बड़ी तादाद मैच देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। फाइनल मैच तवक्को के ऐन मुताबिक दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। मैच के आखिरी ओवर में शमशीर क्रिकेट क्लब डेरा बुगटी ने मद्दे मुकाबिल टीम को शिकस्त दे दी। आखिर में सूबाई वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी के बड़े भाई मीर जान मोहम्मद बुगटी और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीर गुलाम बुगटी और दीगर कबायली उमायदीन ने टूर्नामेंट विनर और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का।
पारा चनार में मुख्तलिफ कबाइल समेत सियासी और समाजी तंजीमों ने पाक फौज की हिमायत में और भारत के खिलाफ रैली निकाली। शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए किसी भी जारियत की सूरत में पाक फौज के शाना बशाने लड़ने का ऐलान कर दिया। कुरम एजेंसी के सदर मुकाम पारा चनार में पाक फौज के हक में और भारत जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली में मुख्तलिफ कबाइल, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ताजिर बरादरी, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अंजुमन हुसैनिया और मुख्तलिफ कबाइली अमायदीन ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान फौज नहीं है, सारे कबाइल आपके सामने सोने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आपके सामने खड़े होंगे। हम कबाइली अवाम ये दावे से कह रहे हैं इंशाल्लाह हम पहले भी लड़े हैं और अब भी हम पाक फौज की शाना बशाना इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। पाक आर्मी से पहले हमारा 20-40 हजार दस्ते तैयार हो चुके हैं। हम पाक आर्मी से पहले लड़ाई के लिए जान कुर्बानी के लिए तैयार है। रैली के शुरका से खिताब करते हुए कबाइली अमायदीन और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि उन्होंने मुल्की दिफा के लिए पहले भी हर तरह की कुर्बानी दी है, आइंदा भी जरूरत पड़ने पर वतन अजीज के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। कबाइली रहनुमाओं ने भारतीय हुकूमत को पैगाम दिया कि अगर कश्मीर में जारी मुजालिम बंद न किए गए तो उसे उसका खुमियाजा भुगतना होगा। इस मौका पर मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। मुख्तलिफ कबाइल ने पाक फौज का साथ देने के लिए 20,000 जवानों का दस्ता तैयार करने का भी ऐलान किया। कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज के साथ रहिए।